Hello students, today we will study about the chromosome map and sex-linked inheritance. Yesterday we discussed about crossing over and previous day we discussed about linkage. I think these concept has already cleared to you. Today chromosome map, I will take first chromosome map. This is 16th lecture in genetics. Now, what is chromosome map? As the name indicate, map. This is the map of chromosome. Okay. What type map of chromosome? Means, for example, this is a chromosome. Okay. In chromosomes, as you know, presence of genes. What are the location of genes? That will determine at here. In chromosomes, what is the position of different genes for different characters? That is called chromosome map. For example, this is a gene. These are the locations. From that location, we know how much is the distance that is determined in map unit or centimorgan. Okay. Now, Morgan and Stewart in 1911. What they said? They said about frequency and frequency percentage. Now, what is the frequency? It is the total number of recombinant. Yesterday, I have explained the term recombinant. It is the result of crossing over. The progeny formed due to result of crossing out, that is called recombinant. Means new one, that is advanced other than the parental. That is called recombinant. Now, total number of recombinant upon total number of progeny, that is called frequency or recombination frequency. I will this explain by taking example. For example, here gray body normalized. That is the example Drosophila. Gray body का Drosophila है, and that the Drosophila has normalized coloration. Crossed with another Drosophila, that is green body and abnormal eye. Okay. These are the genes responsible for these characters in Drosophila. What happened at here? In next generation, what we found? We found that 200 number of parental characters from green body and normal eye. Green body and normal eye, 250 individuals. Gray body, normal eye, 250 individuals. Green body, abnormal eye, 234 individuals. And beside that, we will got some recombinant, new combinations, that is due to result of crossing over, which have already studied yesterday. What happened? That is green and gray and abnormal eye, that is 16. Green and normal eye, that is 14. These are recombinant. I have represented here that are for recombinant, that we for parental character. These are the parental. So parental का number कितना है? We have taken at here. That's 250 plus 334. Total number of progeny. जितना हमारे पास progeny था, तो कितना है? 515. और ये क्या लिया हमने? 16 plus 14. That is new generation or new recombinant. These are 16 plus 14. That total goes on to 31 by 555. 515. ठीक है? As the formula indicate, total number of recombinant बड़े total number of progeny, that has written at here. After solving that equation, we got that type of number 0.0602. What is this? That is the frequency of recombinant. Okay. Now we will take frequency percentage. How will solve the equation? 0.0602 upon this into 100 कट हो गया, तो हमारे पास है 0.06%. What is 0.06%? That is the
फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो एग्जाम्पल था यहां पर हमने लिया, इससे हमें मैप पता लग रहा है। कैसे लग रहा है? क्योंकि ये बताता है फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कितना है हमारे पास, दैट इज अबाउट 0.06%। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड दैट, अगर मैं इसको मिटा दूं यहां पर, या मैं यहां पर लिख लूं आपको, तो दो जीन के बीच जो फ्रीक्वेंसी, एक जीन यहां है, ए है, ये बी है, बोलता इतना परसेंटेज है इनकी फ्रीक्वेंसी का। दैट फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली सेड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। तो इन दो जीन के बीच इतना डिस्टेंस है, इतना परसेंटेज में था। जब हम इसको डिस्टेंस में लेंगे तो इसको सीधा क्या करेंगे, सीएम लिखेंगे। व्हाट इज सीएम? इट इज सेंटीमॉर्गन। मॉर्गन इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। तो उस जब इसने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए ड्रोसोफिला पर, तो उसने डिस्टेंस भी बताया जीन्स के बीच, जिसको मैप डिस्टेंस, और बाद में उसके नाम पर क्या बताया गया, सेंटीमॉर्गन। तो ये ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज सीएम, सेंटीमॉर्गन। इट इंडिकेट्स, इनके भी जो फ्रीक्वेंसी ने इंडिकेट किया इतना डिस्टेंस है। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली क्या बता देती है, साथ में डिस्टेंस बता देती है कितना डिस्टेंस है, ठीक है। एज डिस्टेंस इंक्रीजेस द क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जैसे जैसे नजदीक आएगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, डिस्टेंस जीन में कम होगा, जीन क्या हो जाएंगे, लिंक्ड हो जाएंगे। मान लो ये यहां की बजाय शिफ्ट होकर यहां पहुंच गया, ये ए यहां पर पहुंच गया, बी यहां पर, तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगी, ये जीन लिंक्ड रहेंगे, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। नाउ आई थिंक यू गॉट अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। अब मैं एग्जांपल लूंगा यहां पर आपके पास सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने कर दिया, हाँ, मैंने एग्जांपल लिया, ध्यान से देखिएगा। एक जीन SC है एंड दूसरा जीन EC है, उनके बीच रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 7.6% है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। फिर EC जीन एंड CV जीन के बीच 9.7% है। फिर CS एंड CV जीन के बीच 17.3% है। ये हमारे पास क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है। हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाला मैंने यहां पर, मान लो मैंने यहां पर क्रोमोसोम यहां पर ड्रॉ कर दी, ये पूरा क्रोमोसोम है। इसने बोला SC, मैंने SC यहां पर बना दिया, ये पॉइंट SC है, ये जीन है। बोलता SC एंड EC के बीच, मैंने यहां पर EC लगा दिया। कितना डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी है 7.6, ये मैंने यहां पर लिख ली। अब फिर बोला इसने EC एंड CV के बीच कितना, 9.7, मैंने EC यही रहने दिया और यहां पर CV लगा दिया। कितना हुआ, 9.7%। फिर बोला CS और CV, CS एंड CV, इन दोनों का प्लस कर तो 7.3 आता है, तो इसने 7.3 दिया। What does that indicate? That indicate map of chromosome. हमें यहां पर क्रोमोसोम के जीन्स की पोजीशन पता चल रही है। जब हमारे पास डिस्टेंस दिया है या फ्रीक्वेंसी दिया है, इट क्लियरली इंडिकेट दीज आर द लोकेशन ऑफ जीन्स इन क्रोमोसोम्स। आई विल टेक अनदर एग्जांपल। यहां पर मैंने लिया B जीन है एंड VG जीन है, 18.5 है, ठीक है। मैंने B ले लिया, मैंने VG ले लिया, 18.5, इन दोनों के बीच मैंने डिस्टेंस या फ्रीक्वेंसी ले ली। फिर बोलता B और N के बीच 9 है, B और N लगा दिए, 9 हो गया। CN एंड VJ के बीच कितना बोला, 9.5, इन दोनों का टोटल
आया। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, ये एक क्लियरली हमारे पास पोजीशन पता चल रही है किसकी, जीन्स की। किसमें पोजीशन पता चल रही है जीन्स की, इनसाइड द क्रोमोसोम। लोकेशन का है, पोजीशन क्या है जीन्स की, जो हमने डिस्कस करने थे। तो अब हम आगे जो चलते हैं, आगे चलेंगे हम यहां पर इंपॉर्टेंस। किसकी इंपॉर्टेंस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रोमोसोम मैप। कि क्रोमोसोम मैप में अगर आपको किसका पता है, जीन्स का पता है, तो आप कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, जीन का पता है तो आपको क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, पहली इंपॉर्टेंस है लोकेशन ऑफ जीन। ठीक है, क्रोमोसोम मैप का क्या इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम में जीन कहां है, यहां 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 कहां प्रेजेंट है। दूसरा क्या पता लगेगा कि कितने सेगमेंट्स इसमें बने हैं। ठीक है ना। चौथा क्या है, चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कितनी चांसेस है, नजदीक है तो क्रॉसिंग ओवर का चांसेस कम है, जीन दूर दूर है तो क्रॉसिंग ओवर की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, दीज आर द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस जीन मैप। ठीक है ना, सॉरी क्रोमोसोम मैप से हमें पता चलता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी बात हम यहां पर स्टडी करेंगे, वो है रिगार्डिंग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एज द नेम इंडिकेट, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और जीन्स। कैसे होता क्या है, हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स है जनरली हमारे पास XX एंड XY है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स है। अब लिंक्ड की बात हो रही है तो यहां पर क्या होगा, जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर लगे हैं वो उस सेक्स क्रोमोसोम के साथ ही आगे जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, आपके ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, उससे अगली जनरेशन में जाएंगे। कहने का मतलब F1 जनरेशन F2 जनरेशन में वो ट्रांसफर होते रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मैं एग्जांपल लेके यहां पर डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया, ये पेरेंट है हमारे पास, ठीक है, ये फीमेल है आपको पता है, ये मेल है ये आपको पता है। ठीक है, इस फीमेल के ऊपर RR लगा हुआ है, ये कलरेशन है, मान लो रेड कलरेशन आ गया आई का। ठीक है, हमने ले लिया R है रेड कलर के लिए, आई के कलर के लिए। ठीक है, तो इसमें रेड कलर आ गया। ठीक है, अब जो दूसरे वाला है मेल है, उसके सेक्स क्रोमोसोम में भी रेड कलर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह का है, सॉरी ये वाला है। ठीक है, ऐसे दिखा दिया आपने। ठीक है, ये ग्रीन कलर ले लिया हमने, इसको ग्रीन ले लिया। ठीक है, ये जनरली रस ऐसे हुआ। अब होता क्या है, यहां पर गैमीट्स बनेंगे, ये गैमीट बने, ये गैमीट बने, गैमेटोजेनेसिस लिख लो आप इसको। ठीक है, गैमेट्स बन गए, इसकी गैमेट बने, ये पुनेट क्रॉस करा, हमारे पास F1 जनरेशन आई। ध्यान से देखिएगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैंने इस पेरेंट की गैमेट यहां पर लिख लिया और इस पेरेंट के मैंने यहां लिख लिए, यहां लिख लिया। इसका इसके साथ फ्यूजन हुआ तो ये हमारे पास ऐसे बना, इसका इसके साथ हुआ, ये हमारे पास ऐसे बना, इसका इसके साथ हुआ, ये हमारे पास ऐसे बना, इसका इसके साथ हुआ, ये हमारे पास ऐसे, हमारे पास कुछ नेक्स्ट जनरेशन है। अब नेक्स्ट जनरेशन देखो क्या है, ये रेड कलर के लिए था, ये ग्रीन कलर के लिए था। ये देखो ये डोमिनेंट है तो ये रेड कलर आया, ये भी डोमिनेंट हो इसमें भी रेड कलर आया, यहां भी रेड कलर आया, यहां भी रेड कलर आया। तो सारे के सारे F1 जनरेशन में कैसे ऑर्गेनिज्म आए, लाल कलर के आए। क्यों आए ये हम आगे पढ़ेंगे, पर हम पहले F2 जनरेशन देख लेते हैं। अब हमने मेल फीमेल, ये है, ये भी फीमेल है, ये मेल है, तो मेल और फीमेल का इस जनरेशन का क्रॉस कराया हमने, ये हमने यहां पर ये ले लिया और ये हमने यहां पर ये ले लिया। ठीक है,
अब दोनों ही रेड कलर के थे, क्यों थे? यहां पर ये डोमिनेंट था, ये डोमिनेंट था, ठीक है, ये फीमेल थी, ये मेल था, इनने गैमेट्स बनाए, ये गैमेट बन गए इसके एक के, और इसके गैमेट बने ये, ठीक है। जब गैमेट बन गए, मैं यहां पोनेट क्रॉस दिखा देता हूं आपको, ठीक है। इसके मैंने यहां लिख लिए गैमेट, ये इसके मैंने यहां लिख लिए, यहां लिख लिए, ठीक है। इसका इसके साथ फ्यूजन हुआ तो ये बना हमारे पास, इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ, ये हमारे पास बना, इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ, ये हमारे पास ये बना, ठीक है। इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ तो हमारे पास ये बना। कलरेशन देख लीजिए आप, ये फीमेल आई रेड कलर की, ये फीमेल भी आई रेड कलर की, ऐसे कैरियर फॉर्म, ये मेल आया रेड कलर का, और ये भी आया कैसे? ग्रीन कलर का, एक में यहां पर ग्रीन कलर अपीयर हुआ। अब जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। व्हाट इज क्रिस क्रॉस? जिगजैग, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक एक्स के ऊपर ये करेक्टर है, मान लो एम करेक्टर है, ये लिंक्ड है, ये अगले एक्स में ही जाएगा। अगर फीमेल में है तो ये अपने बेटे में देगी ये एक्स करेक्टर, बेटे से सॉरी, अगर ये मान लो हाँ फीमेल में है तो बेटे में जाएगा, और बेटे से बेटी में जाएगा, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। तो इस तरह से क्रिस क्रॉस ये ट्रांसफर होता है। क्या? सेक्स लिंक्ड करैक्टर, जनरली लिंक्ड करैक्टर आर फाउंड इन एक्स क्रोमोसोम। बहुत कम रेयर चांसेस पे वाई में होता है, परंतु किस में होता है? एक्स क्रोमोसोम में। वही शिफ्ट होता है पिता से बेटी में, बेटी से उसके पिता में, इस तरह से ट्रांसफर होता है, इस तरह से। दैट इज जिगजैग और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कैसे? यहां ये बेटी थी, ठीक है ना, ये इसमें ये आर थे, ये कहां गए? बेटे में गए, इसमें चला गया ये वाला आर यहां चला गया। बेटी से अगली जनरेशन में, ये पहली जनरेशन है ना, बेटी से सॉरी बेटे से किस में गया? बेटी में गया, ये देखो यहां पर चला गया। तो इस तरह से ये जो ट्रांसफर होता है वो क्रिस क्रॉस होता है। इसलिए सेक्स लिंक जीन को क्रिस क्रॉस लिंक्ड इनहेरिटेंस और जिगजैग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज अबाउट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। Tomorrow we will take another topic of the genetics. Already we have discussed 16 topics or lectures in genetics. Many more are left. Then I think after this topic I may take some solutions regarding multiple choice, etc. Whenever I prepare these multiple choice, I will inform you and I will convey you and solve these all multiple type of questions. Thank you so much.